हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज वालेकुम अस्सलाम। जी सर। आवाज आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. जी सर आ रही है। चलो ठीक है। Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic for the discussion is the classification of the malocclusion. Because in the next lecture or after that we will start the fixed appliances and then the biomechanics. So before that we must know how to classify the malocclusion and what are the different classification system. A classification system is a grouping of the clinical cases of similar appearance for ease in handling and the discussion. It is not a system of diagnosis, method for determining the prognosis, or a way of defining the treatment. Now, the purpose of classification is ease of reference, purpose of comparison, ease in self-communication, and ease in discussion. हम malocclusion को क्लासिफाई क्यों करते हैं, मतलब ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्लासिफाई करते हैं ताकि जैसे सपोज हम क्लास में पढ़ाते हैं, मतलब हम कहें कि जी आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किस तरह के malocclusion में हम कैसे करेंगे, मतलब सपोज देयर इज इन क्लास 1 malocclusion, क्लास 2, क्लास 3, तो हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसे डिफाइन करेंगे, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट विल बी फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द malocclusion. ये क्लासिफिकेशन सिस्टम उसमें हेल्प करता है ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग हो. अगर कंपैरिजन करना हो ऑफ किसी भी अप्लायंस का, सपोज कोई अप्लायंस है जो कि क्लास 1 में भी यूज होता है, 2 में भी यूज होता है, 3 में भी यूज होता है, तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि उस अप्लायंस का जो रिजल्ट है वो किस टाइप ऑफ malocclusion या किस क्लासिफिकेशन में जो है वो बेहतर होता है, मतलब सो इसका बेसिकली मेन पर्पस ईज ऑफ रेफरेंस, कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होता है, फॉर द comparison purpose or ease in the discussion. Okay, the different classification systems, the most commonly used and the most easiest one जो worldwide सबसे ज़्यादा यूज होता है, that is the Engels classification system. Then the incisor classification system, Simon's system, etiologic classification system, Ackermann-Profit classification system, and in the last indices. अच्छा, now the indices जो है वो they are not basically the classification systems, but indices का मैं आपको एंड में बताऊंगा कि indices हम क्यों करते हैं. मतलब जो most commonly used classification system है, they are the Engels classification system and incisors classification system. Engels classification system and the incisor classification system. Simon and etiology classification system इतना commonly use नहीं होता, but definitely for the understanding purpose कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं ये होता है. And after that the Ackermann-Profit classification system, जो कि Ackermann-Profit classification system although इतना commonly use नहीं होता, but ये सबसे ज़्यादा organized है. मतलब जितने भी बाकी classification systems के जो problems हैं वो ओवरकम किए गए इन द Ackermann-Profit classification system. Now, what is the Engels classification system? The basis of the classification of the Engels depend on the two things. Number one, the anterior-posterior relationship of the first molar, maxillary, and the mandibular first molar. Number one. Number two, alignment of the teeth relative to the line of occlusion.
सो द एंगल्स क्लासिफिकेशन सिस्टम जो डिपेंड करता है वो दो चीजें पे करता है, मतलब एक जो रिलेशनशिप है ऑफ मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर, उनका एंटीरियर पोस्टीरियर जो रिलेशनशिप होगा कि मैक्सिलरी मोलर जो है वो एंटीरियरली प्लेस्ड है या मैंडिबुलर मोलर जो है वो पोस्टीरियरली या एंटीरियरली प्लेस्ड है, तो ये उस पर डिपेंड करता है, नंबर वन। नंबर टू, the position of the teeth or alignment of the teeth relative to the line of occlusion, कि आर्च पे टीथ की पोजीशन क्या है, मतलब अच्छा one thing कि suppose if the first molar is missing, maxillary first molar or the mandibular first molar, then technically angles classification applicable नहीं होगी। why? because जो angles classification का जो concept है या जो उसका basis है वो है ही maxillary and mandibular first molar, उसी के एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशनशिप है। सो इफ द मोलर्स फर्स्ट मोलर इज मिसिंग, टेक्निकली एंगल्स क्लासिफिकेशन वुड नॉट बी एप्लीकेबल। अगर आप इस तस्वीर में देखें तो ये मोलर रिलेशनशिप दिखाए गए हैं, डिफरेंट मोलर रिलेशनशिप। इसमें अगर मोलर रिलेशनशिप देखें एंड इस तस्वीर में देखें, सो बोथ हैव द सेम मोलर रिलेशनशिप, बट द पोजीशन ऑफ द टीथ इज डिफरेंट इन दिस पिक्चर एंड डिफरेंट इन दिस पिक्चर। ठीक है, ये आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा इसमें सिर्फ देख लें। अगेन इसमें आप देखें मोलर रिलेशनशिप इज डिफरेंट एज कंपेयर्ड के अपर, एंड जो इसका मोलर रिलेशनशिप है वो डिफरेंट है। तो एंगल्स ने बेसिकली क्लासिफाई किया माल अक्लूजन को इनटू द 4 ग्रुप्स, द नॉर्मल अक्लूजन, क्लास 1 माल अक्लूजन, क्लास 2 माल अक्लूजन एंड क्लास 3 माल अक्लूजन। नॉर्मल अक्लूजन क्या होती है कि नॉर्मल क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप, नंबर 1, नंबर 2 टीथ ऑन द लाइन ऑफ अक्लूजन। जो हमने पहले ही कहा कि एंगल्स क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है, जो उसका बेसिस है दैट इज पोजीशन ऑफ द टीथ रिलेटिव टू द आर्च, नंबर 1, नंबर 2 जो एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशनशिप है मोलर का। तो नॉर्मल अक्लूजन में क्या होगा, क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप। अब क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप क्या होता है कि मीजियो बक्कल कस्प ऑफ मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर अक्लूड ऑन द बक्कल ग्रूव ऑफ द मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर। ये है मीजियो बक्कल कस्प, ये अक्लूड करेगा इन द मीजियो बक्कल ग्रूव। ये जो बक्कल इसका ग्रूव है यहाँ पे जब अक्लूड करेगा, ठीक है, तो इसको कहेंगे क्लास 1 अक्लूजन। ठीक है, इसको कहेंगे क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप और क्लास 1 अक्लूजन। तो याद रखें इन द एंगल्स क्लासिफिकेशन जो हम डेफिनेशंस बताएंगे दैट इज अकॉर्डिंग टू द मीजियो बक्कल कस्प ऑफ द मैक्सिलरी मोलर और द डिस्टो बक्कल कस्प। हम कहेंगे कि क्लास 1 में क्या होगा कि मीजियो बक्कल कस्प ऑफ मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर will occlude in the buccal groove of the mandibular first molar. So normal occlusion में molar relationship will be class 1 and teeth on the line of occlusion, teeth will be well aligned. इसमें आप देखें molar relationship is class 1 and teeth are well aligned on the line of occlusion, means there is no crowding. ठीक है, तो तब हम कह सकते हैं this is normal occlusion. क्लास 1 माल अक्लूजन में क्या होगा, नॉर्मल क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप एंड टीथ क्राउडेड और रोटेटेड होंगे। क्लास 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल अक्लूजन एंड क्लास 1 माल अक्लूजन? दे बोथ हैव द सेम मोलर रिलेशनशिप. मोलर रिलेशनशिप इज क्लास 1. Mesio-buccal cusp of maxillary first molar will occlude in the buccal groove of the mandibular first molar. In the normal occlusion, teeth will be well aligned in the line of occlusion. बट इन क्लास 1 माल अक्लूजन जो टीथ होंगे ऑन द लाइन ऑफ अक्लूजन वो इररेगुलर होंगे, क्राउडेड होंगे, रोटेटेड होंगे और स्पेसिंग होगी. सो दिस इज द क्लास 1 माल अक्लूजन. द मोलर रिलेशनशिप इज क्लास 1, मेसियो-बक्कल कस्प अक्लूड इन द बक्कल ग्रूव, बट जो आपके टीथ होंगे वो इररेगुलर होंगे इन द लाइन ऑफ आर्च. जो लाइन ऑफ अक्लूजन होगा उस पे टीथ जो है वो इररेगुलर होंगे. जैसे इसमें आप देखें जो सेकंड प्रीमोलर है वो रोटेटेड भी है एंड लिंगुअली प्लेस्ड है. इट इज द क्लास 1 माल अक्लूजन. ओके, देन क्लास 2 माल अक्लूजन, लोअर मोलर इज डिस्टल टू द अपर मोलर. रिलेशनशिप ऑफ अदर टीथ टू द लाइन ऑफ अक्लूजन इज नॉट स्पेसिफाइड. तो क्लास 2 माल अक्लूजन में क्या होगा कि लोअर मोलर इज डिस्टल टू द अपर मोलर, या आप ये कह सकते हैं मेसियो-बक्कल कस्प ऑफ मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर occlude in the interdental area
between lower second premolar and the first molar, क्योंकि क्लास 2 माल occlusion में क्या होता है कि लोअर मोलर इज डिस्टल टू द अपर मोलर, तो ये जो मीजियोबक्कल कस्प है ये कहाँ पे जाके अक्लूड करेगा, इन द इंटरडेंटल एरिया बिटवीन द सेकंड प्रीमोलर एंड द फर्स्ट मोलर. Class 2 malocclusion is further classified into two groups according to the position of the incisors. Class 2 division 1 and class 2 division 2. So in both the molar relationship will be class 2, but the position of incisor will be different. In class 2 division 1 malocclusion, upper incisors will be proclined or anteriorly placed. इसमें अगर आप देखें तो upper incisors they are proclined or anteriorly placed and there will be an increased overjet. It is known as class 2 division 1 malocclusion. Class 2 division 2 में क्या होगा? The molar relationship will be the same class 2. Mesiobuccal cusp of maxillary first molar will occlude in the interdental area between lower second premolar and the first molar. And incisors क्या होगा? जो central जो incisors होंगे they would be retroclined and lateral incisors जो है वो overlap करेंगे on the central incisors. Central incisors जो है वो retrocline होंगे and lateral incisors overlap करेंगे on the central incisor. So it is class 2 division 2 malocclusion. सर जी बेटा. सर हम सिंपली कैसे देख क्लास 2 डिवीजन 1 में जो ना ओवरजेट होगी और जी. क्लास 2 डिवीजन 1 में जो इंसाइजर ओवरबाइट कंडीशन में होगी सर. अच्छा, इसमें क्लास 2 डिवीजन 1 में इंक्रीज्ड ओवरजेट होगा, ओवरजेट ज्यादा होगा क्योंकि टीथ फॉरवर्डली प्लेस्ड होंगे. यस सर. और क्लास 2 2 में सर क्लास 2 डिवीजन 2 में क्या होगा? इंसाइजर्स रेट्रोक्लाइंड होंगे, ओवरजेट कम होगा. तो मतलब हम ओवरबाइट नहीं कह सकते सर उसको. नहीं, ओवरबाइट नहीं कह सकते बेटा, लेकिन यूजुअली ये होता है कि एक सेकंड बेटा, वीडियो आ रही है नजर इस पे ताकि मैं. जी सर. सर यहाँ पे आप ओवरबाइट और ओवरजेट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करें प्लीज. मैं बताता हूँ. अच्छा, अब क्या होता है देखिए, ये सपोज करें कि अपर इंसाइजर्स हैं और ये लोअर इंसाइजर्स हैं, तो क्लास 2 डिवीजन 1 में क्या होगा कि अपर इंसाइजर्स जो है वो एंटीरियरली प्लेस्ड होंगे, जो लोअर इंसाइजर्स होंगे वो पोस्टीरियरली प्लेस्ड होंगे, इस तरह. ठीक है, तो ये क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल ओवरलैप होता है बिटवीन द अपर एंड द लोअर टीथ इज नोन एज द ओवरजेट. सो क्लास 2 डिवीजन 1 में क्या होगा? इंक्रीज्ड ओवरजेट होगा. अच्छा, अब क्लास 2 डिवीजन 2 में क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द क्लास 2 डिवीजन 2 जो उसके सेंट्रल इंसाइजर्स होंगे वो रेट्रोक्लाइन होंगे. वो कैसे रेट्रोक्लाइन होंगे? ये देखें, क्लास 2 डिवीजन 1 ऐसे होगा, अपर प्रोक्लाइंड है, ये लोअर है, ये अपनी पोजीशन में. डिवीजन 2 में क्या होगा? सेंट्रल इंसाइजर्स ऐसे रेट्रोक्लाइन होंगे, ये जो लेटरल इंसाइजर्स हैं ये उसके ऊपर ऐसे ओवरलैप करेंगे. ये सेंट्रल इंसाइजर्स हैं दो, ठीक है, ये देखें दो, ये सेंट्रल इंसाइजर्स हैं, ये रेट्रोक्लाइन करेंगे ऐसे, और ये जो आपके लेटरल इंसाइजर्स हैं ये सेंट्रल के ऊपर ऐसे ओवरलैप करेंगे. इस कंडीशन को हम कहते हैं क्लास 2 डिवीजन 2. ठीक है. अच्छा, अब दूसरी ये चीज ये है कि क्लास 2 डिवीजन 1 में क्या होगा? ओवरजेट ज्यादा होगा, क्लास 2 डिवीजन 2 में ओवरजेट कम होगा. तीसरी चीज आ गई ओवरबाइट की, कि ओवरबाइट क्या होता है? वर्टिकल ओवरलैप, कि जो अपर इंसाइजर्स ओवरलैप करते हैं लोअर इंसाइजर्स को, जो वर्टिकली कवर करते हैं, नॉर्मली 33% करने चाहिए, तो जो वर्टिकल ओवरलैप होगा देखिए, अब वो दोनों में डिफरेंट हो सकता है. क्लास 2 डिवीजन 1 में वर्टिकल ओवरबाइट जो है वो, जो आपका ओवरबाइट है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, और क्लास 2 डिवीजन 2 में वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. लेकिन क्लास 2 डिवीजन 2 जो होता है उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस आप ये कह सकते हैं कि 80-90% केसेस क्लास 2 जो डिवीजन 2 के होते हैं वो यूजुअली डीप बाइट ही होता है. ठीक है, वो यूजुअली क्योंकि ये इंसाइजर्स ऐसे रेट्रोक्लाइन करते हैं, जब भी इंसाइजर्स रेट्रोक्लाइन करेंगे तो लोअर इंसाइजर को ज्यादा कवर करेंगे. तो क्लास 2 डिवीजन 1 में ओवरबाइट नॉर्मल भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. ठीक है. तो इसका आप ऐसे कॉन्सेप्ट देख लें, ये अपर इंसाइजर्स, ये लोअर इंसाइजर्स, ये नॉर्मल पोजीशन है. ठीक है. अब अगर आप इसमें देखें तो ओवरबाइट इसमें नॉर्मल है,
ठीक है, ये 33% यहाँ तक कवर कर रहा है इसको। जब अपर टीथ प्रोक्लाइन होंगे तो क्या होता है, ओवरबाइट कम हो जाती है, और जब अपर टीथ रेट्रोक्लाइन होंगे तो ओवरबाइट क्या होता है, डीप हो जाती है। तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि जब भी इंसाइजर्स रेट्रोक्लाइन करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, जो आपकी ओवरबाइट है वो डीप हो जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर बेटा यहाँ पे? जी सर, हो गया, थैंक यू सर। जी सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था, आपने कहा कि एंजल क्लासिफिकेशन में हम लोग फर्स्ट मोलर को कंसीडर करते हैं, सर वो फर्स्ट मोलर मैक्सिलरी में होगा या मैंडिबुलर में? फॉर एग्जांपल 4 क्वाड्रेंट्स में अगर एक भी मिस हो गया तो क्या एंजल क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल होगा या नहीं? इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करें सर। अच्छा देखें जी, अकॉर्डिंग टू द एंगल्स क्लासिफिकेशन उसने 2 चीजें बताई हैं। जो उसका मेन बेसिस था वो क्या था, रिलेशनशिप ऑफ मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर मोलर। ठीक है, अगर सपोज करें कि मैक्सिलरी मोलर या मैंडिबुलर मोलर, कोई भी मोलर अगर मिस हो जाए तो टेक्निकली ये एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, कैसे होगा, क्योंकि एंगल्स क्लासिफिकेशन का बेसिस ही वो मोलर रिलेशनशिप है। एंगल्स क्लासिफिकेशन में तो कहीं भी नहीं कहा कि प्रीमोलर का रिलेशन ये होना चाहिए या सेकंड मोलर का रिलेशन ये होना चाहिए। उसने तो डायरेक्टली रिलेशन बताया है मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर का। तो अगर ये मिसिंग हो जाएगा तो वो एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन क्लिनिकली में अगर आपको पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो क्लिनिकली हम कैसे जज करते हैं कि हम ये अज्यूम करते हैं कि सपोज अगर ये मोलर यहाँ पर प्रेजेंट होता तो क्या रिलेशन होता। सपोज अगर यही जो आप इस प्रेजेंटेशन में अभी स्लाइड में जो तस्वीर देख रहे हैं, ये लोअर मोलर इसका मिस हो जाए, ठीक है, सपोज मिसिंग हो, तो टेक्निकली ये क्लासिफिकेशन एंगल्स क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं कि सपोज लोअर सेकंड मोलर फर्स्ट मोलर जो है वो प्रेजेंट है। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट होता तो ये क्लास 2 मालर प्रेजेंटेबल है, तो क्लिनिकली तो हम फिर ऐसे जज कर लेते हैं कि अगर मोलर प्रेजेंट हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू द बुक के हिसाब से कि अगर आपका मोलर मिसिंग है तो एंगल्स क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, ओके सर। Class 2 Division 1 Disto-occlusion in which the maxillary teeth are in extreme labiovergent, teeth proclined. Class 2 Division 2 Disto-occlusion in which the maxillary central are normal anterior posteriorly are slightly retroclined, whereas the lateral have tip labially and mesially. उसमें क्या होगा कि सेंट्रल इंसाइजर आपके रेट्रोक्लाइन होंगे एंड जो लेटरल इंसाइजर थे वो उसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। Then class 2 subdivision. What is the class 2 subdivision? When there is a class 2 molar on the one side and class 1 molar on the other side, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे class 2 subdivision. Class 2 subdivision क्या होगा? When there is a, क्योंकि ऐसे तो कंडीशन हो सकता है ना कि एक तरफ सपोज राइट साइड पे मोलर क्लास 1 हो और लेफ्ट साइड पे मोलर क्लास 2 हो। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे क्लास 2 सबडिवीजन। अच्छा, अब सब डिवीजन के आगे ऐड होगा राइट और लेफ्ट। क्लास 2 सब डिवीजन राइट का मतलब ये होगा कि राइट साइड पे जो है वो आपका क्लास 1 है। जिस तरफ क्लास 1 होगा वो उस तरह हो जाएगा क्लास 2 सब डिवीजन राइट। मींस क्लास 2 इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड इज क्लास 1 रिलेशन। क्लास 2 सब डिवीजन लेफ्ट का मतलब ये होगा कि राइट साइड पे क्लास 2 है और लेफ्ट साइड पे क्लास 1 रिलेशनशिप है। दिस इज क्लास 2 डिवीजन 1। इंसाइजर्स आप देखें प्रोक्लाइंड है, इंक्रीज ओवरजेट है यहाँ पे बहुत ज्यादा। दिस इज क्लास 2 डिवीजन 2। इसमें आप देखें कि सेंट्रल इंसाइजर्स रेट्रोक्लाइंड है और ये जो लेटरल इंसाइजर्स है ये ऐसे प्रोक्लाइंड ओवरलैप हो गए। ओके, क्लास 3 मालर ओक्लूजन क्या होगा? लोअर मोलर दे आर मीजियल टू द अपर मोलर। क्लास 2 में क्या था? लोअर मोलर इज डिस्टल टू द अपर मोलर। In class 3, lower molar is mesial to the upper molar. A relationship of other teeth to the line of occlusion is not specified. वो एंगल्स ने नहीं बताया कि रेस्ट ऑफ द टीथ की पोजीशन क्या होनी चाहिए। लोअर मोलर मीजियल का आप इसको डेफिनेशन अगर कहें तो ये भी कह सकते हैं कि लोअर मोलर इज मीजियल टू द अपर मोलर, और ये कह सकते हैं कि मीजियोबक्कल कर्व ऑफ मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर will occlude in the interdental area between lower 6 and 7. Lower first and second molar. Mesiobuccal cusp of maxillary first molar will occlude in the interdental area between lower first and second molar.
इसको कहेंगे क्लास 3 माइलोक्लूजन। अच्छा, ये सारी डेफिनेशंस में एक चीज अगर जो है हम देखें वो कॉमन क्या थी, अकॉर्डिंग टू द एंगल के ये हमेशा लोअर मोलर जो है वो उसकी मूवमेंट हो रही है। लोअर मोलर इज डिस्टल टू द अपर मोलर तो क्लास 2 है, लोअर मोलर इज मीजियल टू द अपर मोलर तो वो क्लास 3 है। ये डेफिनेशन ये इस तरह इसलिए लिखी गई है बिकॉज अकॉर्डिंग टू द एंगल ने ये कहा था कि जो मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर है इट इज इन ए फिक्स्ड पॉइंट इन द स्कल। उसने कहा था कि ये स्टेबल पॉइंट है मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर, बट आगे चल के डेफिनेटली उसका ये कॉन्सेप्ट गलत हुआ। मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर जो है वो स्टेबल पॉइंट नहीं है। ओके, द लिमिटेशन ऑफ द एंगल्स क्लासिफिकेशन originally based on the anterior posterior relationship of the molars with each other, ठीक है ना, ये hypothesis definitely आगे चल के। अच्छा, दूसरा इसने ये कहा था कि जो maxillary first molar जो है वो एक fixed point होता है in the maxilla, जो कि आगे चल के ये इसका पॉइंट गलत साबित हुआ कि maxillary first molar जो है वो fixed point नहीं है, क्योंकि suppose if there is any early loss of maxillary जो primary molar है, maxillary E जो है उसका early loss हो जाए तो क्या होगा, जो मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर है वो मीजियली ड्रिफ्ट करेगा। जब वो मीजियली ड्रिफ्ट करेगा तो वो अपनी पोजीशन तो उसने चेंज कर दी, तो ये एंगल का कॉन्सेप्ट गलत हो गया कि मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर एक स्टेबल पॉइंट नहीं है। दूसरा, एंगल्स क्लासिफिकेशन डज नॉट इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांसवर्स इन द वर्टिकल प्लेन्स, malfunction of the muscles were overlooked and problems of the growth of the bones overlooked। क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि जो मालोक्लूजन होती है दैट इज इन ऑल द 3 डायमेंशंस, ठीक है। नंबर 1, ऑल द 3 डायमेंशंस मींस एंटीरियर पोस्टीरियर भी होता है, ठीक है, जिसमें ओवरजेट आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज हो। ट्रांसवर्स भी होता है राइट और लेफ्ट, जिसमें पोस्टीरियर क्रॉस बाइट डेवलप होती है। वर्टिकल भी होता है हाई एंगल और द लो एंगल, डीप ओवर बाइट और द ओपन बाइट। तो ये सारे डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं इन ऑल द 3 डायमेंशंस, और ये सारे प्रॉब्लम्स ओवरलुक हो गए बाय द एंगल्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एंगल क्लासिफिकेशन ये चीजें हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इस पेशेंट में कोई ट्रांसवर्स डिस्क्रिपेंसी है, कोई वर्टिकल डिस्क्रिपेंसी है, कोई एंटीरियर पोस्टीरियर है। एंटीरियर पोस्टीरियर भी सिर्फ और सिर्फ ये डेंटल बताता है ना, स्केलेटल इंफॉर्मेशन नहीं देता मतलब ये। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द एंगल्स क्लासिफिकेशन। ये एंगल्स क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिकल करेंगे अपना मॉडल एनालिसिस, उसमें एंगल्स क्लासिफिकेशन आपको काम आएगी। आप मोलर रिलेशन लिखेंगे नंबर 1। नंबर 2, यूजुअली आपका जो ऑस्पी होते हैं उसमें एक स्टेशन होता है एंगल्स क्लासिफिकेशन का, मतलब जिसमें एक मॉडल रखा जाता है, उसमें लिखा जाएगा कि जी टाइप ऑफ मालोक्लूजन इसमें कौन सी है एंड इन लिस्ट द ड्रॉबैक्स ऑफ द एंगल्स क्लासिफिकेशन। यहाँ समटाइम ये शॉर्ट ऐसे में भी आ जाता है कि व्हाट इज एंगल्स क्लासिफिकेशन and write down the drawbacks of the angles classification। तो आप उसमें लिखेंगे एंगल्स क्लास 1 क्या होता है, क्लास 2, क्लास 3 एंड देन द ड्रॉबैक्स ऑफ द एंगल्स क्लासिफिकेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से बेटा याद कीजिएगा। ओके, देन द इंसाइजर क्लासिफिकेशन। क्लास 1 इंसाइजर रिलेशनशिप क्या होता है, ये आप लोगों ने वो सेकंड ईयर में टूथ मार्फो में पढ़ा होगा, यहाँ जो है आप जब ये प्रोस्थेटिक में पढ़ते हैं तो उसमें भी आप ये रिलेशनशिप देखते हैं ना जब आप डेंचर वगैरह बनाते हैं। तो क्लास 1 इंसाइजर ये होगा कि व्हेन द मैंडिबुलर इंसाइजर कॉन्टैक्ट विद द इंसाइजर प्लेटू ऑफ द मैक्सिलरी इंसाइजर, दैट इज नोन एज क्लास 1 इंसाइजर रिलेशनशिप। तो ये नॉर्मल रिलेशनशिप होगा कि लोअर इंसाइजर जो है वो कॉन्टैक्ट करेगा विद द सिंगुलम प्लेटू ऑफ द मैक्सिलरी इंसाइजर, इट इज क्लास 1 रिलेशनशिप। Okay, then class 2 incisor relationship, maxillary teeth are in extreme labiovirgin। यहाँ हम ये कह सकते हैं when the lower incisor is distal to the cingulum plateau, तो हम कह सकते हैं it is class 2 incisor। क्लास 1 में क्या होगा, ये exactly same है जैसे एंगल्स क्लासिफिकेशन होता है, उसमें आप क्लास 1 पढ़ रहे थे। क्लास 2 में क्या होता, लोअर मोलर डिस्टल है टू द अपर मोलर। इसमें भी क्लास 2 में यही होता है कि जो लोअर इंसाइजर्स होंगे they were distal as compared to the cingulum plateau। When the lower incisor are distal to the cingulum plateau तो हम इसको कहेंगे क्लास 2। क्लास 3 में क्या होगा, when the lower incisor they are anterior to the cingulum plateau तो कहेंगे क्लास 3 क्लासिफिकेशन।
अब क्लास 2 में क्या था, मैक्सिलरी टीथ आर इन एक्सट्रीम लेबियो वर्जन, जैसे मैंने कहा क्लास 2 डिवीजन 1 में टीथ प्रोक्लाइंड होते हैं, एंड क्लास 2 डिवीजन 2 में क्या होता है, सेंट्रल इंसाइजर्स रेट्रोक्लाइंड होते हैं। अच्छा, क्लास 2 डिवीजन 2 इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। डिवीजन 2 की फिर फर्दर टाइप्स है। डिवीजन 2 में टाइप ए क्या होता है, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स आर नॉर्मल एंटीरियर पोस्टीरियरली are slightly retroclined, whereas laterals have tipped labially and mesially. Number 1. Class 2 division 2 type B क्या होगा, all 4 incisors are tipped lingually and canines are in mesio-labio version. Type C क्या होगा, linguo version of all the 6 anterior teeth. Type D क्या होता है कि mixed type of frontal position with lingually inclined incisors on the one side. मैं अब आपको सिंपल इसमें बता दूं कि जब टाइप ए में क्या होगा कि सेंट्रल इंसाइजर्स जो दो हैं वो रेट्रोक्लाइंड होंगे और लेटरल्स जो हैं वो उसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, तो ये होगा डिवीजन 2 टाइप ए। टाइप बी में क्या होगा, टाइप बी में क्या होगा कि सेंट्रल एज वेल एज लेटरल्स वो रेट्रोक्लाइंड होंगे, केनाइन्स उसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, तो ये होगा टाइप बी। टाइप सी में क्या होगा, सेंट्रल लेटरल एंड केनाइन ये सारे रेट्रोक्लाइंड होंगे। ये आप देखते होंगे काफी ऐसे लोग जिसमें टीथ आर वेल अलाइंड बट वो क्या होते हैं कि टीथ आर वेल अलाइंड बट वो लिंगुअली प्लेस्ड होते हैं, मतलब वो, ठीक है। एंड टाइप डी में क्या होगा, मिक्स टाइप होगा। सपोज एक साइड पे टीथ रेट्रोक्लाइंड होंगे, दूसरी साइड पे राइट साइड पे टीथ अगर रेट्रोक्लाइंड है तो लेफ्ट पे जो है वो प्रोक्लाइन हो, तो जो मिक्स टाइप ऑफ पोजीशन ऑफ द इंसाइजर्स होगी उसको कहेंगे क्लास 2 डिवीजन 2 टाइप डी। आगे इसमें तस्वीरें भी आएंगी। ये हो गया क्लास 2 डिवीजन 1। क्लास 2 डिवीजन 2 टाइप ए। टाइप ए में क्या है, सेंट्रल इंसाइजर्स आर रेट्रोक्लाइंड, लेटरल्स उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। क्लास 2 डिवीजन 2 टाइप बी, उसमें क्या है, सेंट्रल्स एंड लेटरल वो रेट्रोक्लाइंड है एंड केनाइन जो है वो उसके ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो इट इज क्लास 2 डिवीजन 2 टाइप बी। टाइप सी में क्या होगा, सेंट्रल्स लेटरल एंड केनाइन वो सारे रेट्रोक्लाइन होते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनकी ये कंप्लेन होती है कि जी हमारे टीथ जो है वो अंदर गए हुए हैं और हमारा होंठ जो है वो ऊपर उठा हुआ है, मतलब जो मैक्सिलरी जो बेजल बोन है वो इंटीरियरली प्लेस्ड है एज कंपेयर टू द टीथ। तो ये कंडीशन यूजुअली टाइप सी में होती है, मतलब जिसमें आपके सेंट्रल लेटरल एंड केनाइन ये रेट्रोक्लाइन होंगे पूरे, और जो आपका ये यूजुअली जो गमी स्माइल है या जो गम शो ज्यादा होगा, जो मैक्सिलरी बेजल बोन है वो उसमें ज्यादा फॉरवर्ड प्लेस्ड होगी एज कंपेयर टू द टीथ। एंड टाइप डी में क्या होगा, देयर इज एन मिक्स, ऑन वन साइड द टीथ इज रेट्रोक्लाइन, ऑन द अदर साइड द टीथ आर प्रोक्लाइन, so this is then a combination of the retroclination and the proclination of the teeth। तो ये हमने जो चीजें पढ़ी, मैं अगेन इंसाइजर क्लासिफिकेशन में रिवाइज कर लूं। नंबर 1 इज द क्लास 1 रिलेशनशिप, when the lower incisor contact the cingulum plateau of the maxillary incisor. Then class 2, lower incisor is distal to the cingulum plateau of the maxillary incisor. Class 2 is further classified into 2 groups. Class 2 division 1, class 2 division 2. Division 1 में क्या होता है, incisors are proclined. Division 2 में क्या होता है, incisors are retroclined. जो division 2 होती है, it is further classified into 4 groups. टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। टाइप ए में क्या होगा, सेंट्रल इंसाइजर्स रेट्रोक्लाइंड होंगे, लेटरल्स ओवरलैप करेंगे। टाइप बी में क्या होगा, सेंट्रल एंड लेटरल्स रेट्रोक्लाइंड होंगे एंड केनाइन ओवरलैप करेगा। टाइप सी में सेंट्रल, लेटरल एंड केनाइन, एंटीरियर जो 6 टीथ होंगे वो रेट्रोक्लाइंड होंगे, ठीक है। वो ऑब्वियसली विजिबल होगा कि एंटीरियर टीथ आर रेट्रोक्लाइंड, एंड जो उसका आप ये कह सकते हैं कि कोरोनल पोर्शन पीछे होगा, रूट का पोर्शन लगेगा कि आगे है। एंड टाइप जो डी होता है, इट्स एन मिक्स, देयर इज एन रेट्रोक्लिनेशन ऑन द वन साइड, टीथ रेट्रोक्लाइन होंगे, ऑन द अदर साइड जो है वो टीथ प्रोक्लाइन होंगे, दैट इज द टाइप डी। देन क्लास 3 इंसाइजर क्या होगा, व्हेन लोअर इंसाइजर दे आर एंटीरियर टू द सिंगुलम प्लेटो। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि व्हेन लोअर इंसाइजर दे आर एंटीरियर टू द
जो इंसाइजर एज होगा मैक्सिलर इंसाइजर्स का तो हम उसको कहेंगे क्लास 3। अगर इसमें देखें कि जो लोअर इंसाइजर्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं मैक्सिलरी इंसाइजर्स को, दैट इज द क्लास 3 इंसाइजर रिलेशनशिप। नाउ द साइमंस क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो हमने दो अभी तक डिस्कस किए हैं, एंगल्स क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड इंसाइजर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। Now the dental arches are related to 3 anthropological planes based on the cranial landmarks. जो planes Simons ने define किए थे, that was the Frankfurt horizontal plane, orbital plane and the mid-sagittal plane. Frankfurt horizontal plane was used to assess the vertical relationship. Orbital plane was used to assess the anterior-posterior relationship, and the mid-sagittal plane is used to assess the mediolateral or the transverse relationship. Frankfurt horizontal plane क्या होता है कि जो प्लान फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द ऑर्बिट से लेकर ईयर तक जो जाए, ये जो प्लेन है दैट इज द फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जो साइमन से इस फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन से हम फेस की हाइट को असेस करते थे, मतलब कि फेशियल जो हाइट है वो हाई एंगल है या लो एंगल है। देन इज द ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या है कि ये जो इंटीरियर जो प्लेन होगा ना, ये वाला प्लेन, क्योंकि ये ऑर्बिट है दोनों, तो ये जो प्लेन होगा, ठीक है, ठीक है, इस प्लेन को वो ऑर्बिटल प्लेन कह रहा है और ये होता है फॉर द एंटीरियर पोस्टीरियर असेसमेंट। सपोज ये ऑर्बिटल प्लेन है और मैं कंपेयर कर लूं कि जो मेरे टीथ है इंटीरियरली वो इस ऑर्बिटल प्लेन से कितना इंटीरियरली प्लेस्ड है या उससे कितना डिस्टेंस है, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट मैं बता सकता हूँ कि उसकी एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन क्या है। तो ऑर्बिटल प्लेन is used to assess the anterior posterior relationship, and then the mid sagittal plane जो definitely center से होता है, it is used to assess the transverse discrepancy. Simons classification यूज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इसके जो प्लेन्स है उसके नाम आपको पता होने चाहिए कि Simons classification के कौन कौन से प्लेन्स है। Frankfurt horizontal plane, orbital plane and the sagittal plane. Frankfurt horizontal plane is for the vertical, orbital plane is for the anterior posterior, sagittal plane is for the transverse discrepancy. Contribution is the orientation of the dental arch to the facial skeleton, differentiate between malposition of the teeth and the osseous dysplasia, and 3-dimensional क्योंकि ये तीनों उसने प्लेन दिए हुए। Limitation is cumbersome method and not user friendly, ठीक है, तो इसीलिए डेफिनेटली ये साइमन क्लासिफिकेशन यूज नहीं होता है इतना। Then etiology classification system, समझ आ रहा है आप लोगों को जी यहाँ पे? जी सर। यस सर। चल ठीक है, ये etiologic बस इसको करके फिर फिनिश करेंगे, बाकी आगे जो एक्करमैन प्रॉफिट होगा वो फिर नेक्स्ट टाइम में समझाऊंगा तसल्ली से। Okay, etiology classification system, etiology definitely according to the cause, ठीक है, divided into 3, osseous are the skeletal, neuromuscular जो soft tissue discrepancies की वजह से हो, या the dental because of the position of the teeth. Osseous are the skeletal, basically जो हम assess करेंगे that is with the help of the cephalometry, हम एक्सरे सेफेलोमेट्री यूज करेंगे, उससे हम असेस कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम्स इन द ग्रोथ, कि जो मैग्जिला की ग्रोथ है वो नॉर्मली हुई है या नहीं हुई, उसकी साइज उसकी नॉर्मल है या नहीं है, प्रोपोर्शन बिटवीन द मैग्जिला एंड द मैंडिबल वो नॉर्मल है या नहीं है। तो स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी वी कैन असेस विद द हेल्प ऑफ द लेटरल सेल। देन द न्यूरोमस्कुलर फंक्शनल, जो माल फंक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द डेंटोफेशियल रीजन, अगेन कि आप ये कहें कि सपोज के जो लिप होते हैं, जो लिप की टोन होती है, अगर सपोज द लिप जो है वो लोअर लिप ज्यादा प्रेशर अप्लाई करें ऑन द लोअर टीथ तो डेफिनेटली वो उनको रेट्रोक्लाइन करेगा, उनकी प्रोक्लिनेशन नॉर्मल इंक्लिनेशन पे नहीं आएंगे। जो टोनिसिटी ऑफ द मसल्स होती है कि मसल्स की टोन कितनी है, मतलब तो वो विल डेफिनेटली चेंज द पोजीशन ऑफ द टीथ, ठीक है, जो उनकी पोजीशन चेंज करेगी तो उसकी वजह से आपका जो है वो डेंटल पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, तो वो उसकी ईटियोलॉजी हो सकती है। या आप ये कह सकते हैं कि जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें हैबिट होती है थंब सकिंग की, हैबिट होती है टंग थ्रस्टिंग की, वो कंटिन्यूसली टंग जो है वो एंटीरियरली प्लेस करते हैं ना, टंग कंटिन्यूसली एंटीरियरली प्लेस करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है आपके टीथ प्रोक्लाइन हो जाते हैं। तो दैट इज द सॉफ्ट टिश्यू दैट इज बेसिकली द काजिंग द माल ऑक्लूजन, ठीक है। एंड देन द डेंटल जो
cause होगा that is the malposition of the teeth, abnormal number of the teeth, abnormal size of the teeth, abnormal texture of the teeth, means irregular position of the teeth हो, macrodontia जो tooth में size में teeth normal से ज़्यादा होते हैं, microdontia small होंगे, again they will cause the malocclusion. Number of the teeth increase हो जाए या decrease हो जाए, again they will cause the the malocclusion. And abnormal texture, अगर उसका shape ठीक नहीं है तो again definitely they will cause the malocclusion. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लें. देखिए मैं क्विकली अगेन रिपीट कर लूँ, 3 चीजें हमने डिस्कस की. नंबर 1 इज द एंगल्स क्लासिफिकेशन. मैंने आपको पहले बताया कि इस पूरी जो आपकी ये स्लाइड और ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंगल्स क्लासिफिकेशन, उसको अच्छे से याद कर लेंगे, तो बाकी अगर याद ना भी हो तो उसका खैर है. दूसरा जो हमने किया दैट इज द इंसाइजर क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड इज द एटियोलॉजी क्लासिफिकेशन. Angles classification is class 1, class 2 and class 3. Class 2 is further divided into division 1 and division 2 according to the position of the incisors. ठीक है,